ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणाम गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अच्छा, और उसमें कहानी है राजा विपश्चित का। पार्श्वचर लोग विजय के उल्लास में राजा को प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति को विभिन्न रूप से राजा को अवगत करवा रहे हैं, जिसमें हम वो खास करके आकाश का कल बहुत विचार किए थे। आकाश में कैसा कैसे देखो महाराज, आकाश शून्य होता हुआ सबको धारण करता है और कितने गंदगी को धारण करते हुए भी सदा सर्वदा अपना जो स्वच्छता को त्याग नहीं करता है। देखो सूर्य भगवान को जैसे एक पथिक रास्ता में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा बिना सोचे जाना है तो चल देता है, वैसे ही प्रारब्धवश सूर्य भगवान कैसे अपना रास्ता में आकाश मार्ग में निरंतर चलते रहते हैं। हे महाराज देखो, ये कोई सुविधा असुविधा को देखते नहीं और आकाश मार्ग में वो निरंतर अपना रास्ता में चलते रहते हैं। जो ज्ञानी लोग, समझदार लोग, वो अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रारब्धवश जो मिला उस रास्ता में चलते रहते हैं।
सुविधा असुविधा को ज़्यादा नज़र नहीं डालते हैं। ऐसे ही कल हम और सब आकाश का अच्छे गुण बुरे गुण सब कुछ कल विचार कर रहे थे, और इसी से तो हमको प्रकृति से हम हर पल कुछ न कुछ सीखने के लिए हमको मिलता है। प्रकृति एक समझो विद्यालय, और पैदा होने से लेकर के आखिर तक हम जिंदगी का आखिर सांस तक हम प्रकृति से हर तरह से कुछ सीखना के लिए हमको मिलता है। ये हम कल देखे। यस जवाई जी, कैन यू अंडरस्टैंड लिटिल हिंदी? हिंदी ऑल्सो? Rukmini, you give the essence to him and let him enjoy only our jokes and laughters. Okay. We are discussing on Yoga Vasishtha some story of a king Vipaschit, and he was very old. Seeing his conditions, his enemies from all around the country attacked him, and he was almost on a point of defeat because he was not aware of his enemies. They suddenly attacked from all sides, and his subordinates were killed. So, being unable to do something presently, he worshipped his deity, Lord Fire God, and he offered his head and body also in the fire, in the sacrifice. In return, one king came out from the fire being four with the same DNA, and they were equipped with all kinds of celestial weapons and everything, and they started fighting out their enemies from all four sides, and very soon the enemies were defeated. They were driven out till the seashore from all sides, and now by the joy of his conquest, he was enjoying the beauty of the nature, and the subordinates, his friends, ministers or others who were there with him, they were discussing, they were showing the beauty of nature in all sides. All the four kings, they were fed with all these informations, and he was enjoying the beauty of the nature. And that is what we were discussing yesterday. It was beautifully narrated. You see, we have every chance, every moment to learn something or other from the nature. Nature is nothing but a school. Every moment it teaches. One should learn every moment till the death.
That is what we were discussing now, recap, what we saw yesterday. Some subordinate was showing the sky to the king. See, my dear king, how the sky, though it is every moment by every means it is getting disturbed and it it gets always dusty and always dirty by different say storms and clouds and rains in every way, by sound, by rainwater, by yes, you see, dusts, and by the color of evening sky and morning also. In every way the sky is disturbed, but yet it never gives up its nature. It is always clear and pure, always clean, and it never gets dirty. So one should learn from the sky. Though there is chance of all sorts of problems and miseries, yet one should not be disturbed by all these. The original nature of a person is peace and tranquility and knowledge, understanding. This is the natural nature of a person. But by these situations, by the surroundings, by time, space and conditions, always one gets disturbed and always we have problems and all sorts of worries. But one should not be disturbed by all these natural phenomena. One should be always steady, one should be always introvert and keep quiet inwardly. Outside he has to do everything as in a relative world. We have to do everything outwardly, but inwardly be a witness and don't be a doer, because everything is being done by the nature. Nature forces to every being to do something or other, because nobody can keep quiet even for a moment without doing something. So all these actions and reactions, they are the natural process and done by the nature only. You are nowhere. Your nature does everything. So be an witness to your nature. Don't be a doer, but be a witness. That's what we have to learn from the nature. कल हम देखे थे, शंका था आकाश में कोई निरोधक व्यापार नहीं है, अतः वह निरोध का कर्ता नहीं हो सकता है। इसीलिए उसमें विरुद्ध निरोध कर्तृत्व कैसे हो सकता है। यद्यपि आकाश में ये गंदगी का सारे कारण है, धूल, बारिश, बादल और नाना किस्म से आकाश को मलिन करने के लिए सब कुछ
कारण होता हुआ भी आकाश कभी मलिन नहीं होता है। आकाश उसका निरोध करता है, मलिन नहीं होता है। इसके ऊपर शंका किया गया, आकाश तो अकर्ता है, अभोक्ता है, इसीलिए आकाश में ये शक्ति कहाँ से आया कि वो निरोध करेगा? हाँ, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। आकाश के अंदर कोई कर्तापना है ही नहीं, वो तो कुछ नहीं है। हम देखते हैं आकाश कुछ करता नहीं, इसलिए आकाश कैसे निरोध कर सकता है ऐसा? तो उत्तर दिया गया उसके लिए। कल हम देखे थे, यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान आकाश में कर्तृता महिमा से ही उदित होती है। So the answer was, the question was, the sky cannot do anything, it never does anything, so it cannot offend itself by not being disturbed by all everything. It has got no capacity, so it cannot do anything. How it can be always pure and avoid its causes of impurities and all these, that how it can obstruct all these and be pure always? It cannot. So the answer was, you see, for the great people, they don't be a cause for anything. प्रेसिडेंट हमारा, India's president, the president doesn't do anything, but his presence does everything. His being is enough to arrange everything to be done. The whole government runs everywhere, everybody is always alert to do his duties, and they do it. But president, being the highest personality, he never comes to ask everyone to do something. Nothing he does. His presence is enough. So all these great people, they never do anything. The king never does anything, because king is there. So all the subordinates, all the officials, they are always alert to do their duties, or else they are afraid of the king. They will be punished. So out of fear of the boss, the subordinates do everything. इसी प्रकार परमात्मा जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, इसी रूप में सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सर्वव्यापक होने से, उनका उपस्थिति सर्वव्यापक होने से वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी है, सब कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ। प्रेसिडेंट हमारे संजीव रेड्डी थे। संजीव रेड्डी या कौन प्रेसिडेंट रहे ना हमारे? अभी नहीं, बहुत पहले रेड्डी थे हमारा, कोई एक रेड्डी थे। संजीव रेड्डी थे।
प्रेसिडेंट थे। वह स्वामी चिदानंद जी का बचपन का दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड। तो जब वो प्रेसिडेंट बने, वो इधर उधर कभी कहीं ड्यूटी में जाते थे, तो उनका मन में आया, अरे चिदानंद जी तो उधर हैं, वो गंगोत्री भी जाते हैं। तब जब वो चिदानंद जी को बताए फ़ोन में कि आप जब गंगोत्री में रहेंगे, मैं आऊँगा गंगोत्री, गंगोत्री देखेंगे। तो उनका प्रोग्राम बन गया। स्वामी जी का प्रोग्राम के साथ कोइंसाइड करके उनका प्रोग्राम बन गया, आएंगे। तारीख फिक्स हो गया, अमुक तारीख को प्रेसिडेंट आएंगे। तो प्रेसिडेंट आएंगे इतना खबर सारे डिस्ट्रिक्ट जितने ऑफिशियल्स हैं और स्टेट भी, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट भी सब अलर्ट हो गए, अरे प्रेसिडेंट आएंगे, उनके लिए रहने के लिए। और उनका खाना पीना उधर सब गंगोत्री में, बिजली पानी और साफ सफाई इतना चमक रहा था गंगोत्री। जगह जगह पर वो आर्च बना करके और उसको सजा करके, ओ 4-5 दिन पहले से सारे तैयार, पुलिस जगह जगह पर खड़े हैं, रास्ता के किनारे वो सब चूना डाल करके और सब कुछ तैयार। और आखिर जिस दिन आना था उसका पहला दिन शाम को खबर आया कि कैंसिल हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दूसरे दिन हम लोगों को जाना था गंगोत्री, स्वामी जी हैं और सब हम लोग स्वामी जी के साथ जा रहे हैं। पहुँचे गंगोत्री तो कुछ और नया है, सब कुछ बदल चुका है। बड़ा आश्चर्य लगा। स्वामी जी पूछते हैं, ये गंगोत्री में हम आए, इतनी साफ सफाई और जहाँ तहाँ देखो आर्च वगैरह बना हुआ है और पुलिस खड़े है, ये गंगोत्री है? मैं कहा जी स्वामी जी, ये सब ऐसे ही वो प्रेसिडेंट आने वाले थे, इसीलिए सब साज सज्जा हो रखा है। अच्छा क्या हुआ, आ रहे हैं? मैं कहा नहीं, कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो स्वामी जी यही दिए उदाहरण जो अभी हम विचार कर रहे हैं। बड़े लोग कुछ नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट डिडंट कम टू गंगोत्री टू अरेंज एवरीथिंग, his stay, his food and other things, and all this cleanliness and everything to be in order. He didn't do anything, he didn't order also. He didn't think of all these. But the rumor, he has to come certain day. That news itself was enough to change Gangotri. Everything was in order. So this is how the great people never do anything. Their presence, their supposed presence does everything. Suppose imaginary presence does everything. It forces everyone out of fear to do their duties. As such, the sky never does anything.
but it remains pure and great all the time. It doesn't do anything. The great people never do anything. Their presence is enough to make others do everything out of fear. Sky is great. Why? Because it is all pervading. Nobody knows its beginning and end, and nobody knows how big it is, what it is, how it is. Is it solid or empty? How do you think? The sky is solid or empty? Come on. You have to look at the sky and then say, see, whether it is bright or dark, whether it is solid or empty, whether it is dirty or clean, what it is, how it is, come on. Are you able to see it? So it is outside, far off there, isn't it? Not here. We have to look up to see the sky. this, this is our situation, you see. We have to see up to see the sky. There is no sky here. Where are you sitting? In the womb of the sky. The sky is empty, yet it is solid. Though it is solid, yet it is empty. देखो आकाश का बड़ापना, कुछ नहीं करता हुआ सब कुछ करता है, और पूरा शून्य होता हुआ पूर्ण रूप से ठोस है। इसमें सब कुछ इसी के अंदर है, आकाश में ही। वेयर इज योर अर्थ? वेयर इज योर सन एंड मून? Where are all so many universes? Where are they? Are they outside the sky? So, whether the sky is empty or solid, this is the greatness of sky. We cannot say anything on it. It is beyond our imagination, beyond our understanding. Nobody knows how, what is the end, the other side of the sky, how high it is. This is how one should always follow or keep the idealism of the great people. Sky, though, doesn't do anything, yet it is all there. जिसमें लाखों जगत विलीन होते हैं और जिससे उत्पन्न होते हैं, उस आकाश को शून्य कहा जाता है। बताओ,
हम जो विचार करते हैं वही बात वो कर रहे हैं। आकाश को कहते हैं शून्य। शून्य कैसे होगा? करोड़ों ब्रह्मांड इसमें हर पल में बनते हैं और बिगड़ते हैं, और इसको हम शून्य कहते हैं। आकाश शून्यता वादी के ऐसे प्रौढ़ पांडित्य की बलिहारी है। तुमको धन्य कहना जो कहता आकाश शून्य है, उसका बलिहारी तुमको, तुम्हारे पैर में नमस्कार। हाँ, करोड़ों आकाश करोड़ों ब्रह्मांड जिसमें बनता बिगड़ता हर पल में, वो आकाश को सब कहते हैं शून्य है। धन्य हो तुम्हारा बुद्धिमता। Innumerable universes are originated every moment, and every moment they are getting destroyed, and people say the sky is empty. This is really a wonder. People say sky is empty. Where is your earth? Where is your solar system? Where is the sun? And where is your galaxy? How many such galaxies are floating aimlessly, just as dust particles in the beam in beam of light in the evening, when it is seen through your windows in your room. How many dust particles they float in that beam of light, you see, helplessly, aimlessly, dashing against each other. Similarly, innumerable universes, they just helplessly, they make the sky dirty, but the sky is ever clean and clear, always pure. By those dust particles, does your room get dirty? Always you can see. Keep your room as clean as you can, but yet in the evening sunshine beam through your window, when you see inside your room, how many dust particles, उसको हम कहते हैं त्रस रेणु. Similarly, innumerable helpless universes, they just float in this sky like dust particles. You know, in physics, in light, no, in some topic, some subject, the astrologers or the modern scientists, they say sometimes somebody, some unknown body, उल्का पिंड हम कहते हैं, some comet, they come
From where nobody knows. They come from somewhere, and they, because of sun, they around the sun they make a turn, and they go somewhere. Nobody knows. They come from somewhere and go somewhere. Nobody knows. क्या वो उसको पाथ को कहते पाराबुलम hyperbola, yes. They come from somewhere, some place, and they go somewhere nobody knows, and yet it comes and goes. Such comets are not one, innumerable. They go on traveling aimlessly, helplessly, and meaninglessly. So this is our sky, and we say it is empty. Such is the greatness of the sky. बड़े लोगों का ये बड़ापना होता है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता है। समुद्र के अंदर कितना रत्न भरा पड़ा है कोई गिनती कर सकता है। समुद्र में कितने लहरें उठते हैं और बिगड़ जाते हैं, कौन गिनती करता है। तभी तो बोला कोई, लहरों से लहरें टकराते हैं क्यों, लाखों अरबों बुदबुदे बन जाते हैं क्यों, और बन करके फिर बिगड़ते रहते हैं क्यों। जब बने तब रहना था, बिगड़ते क्यों। हर पल में महासागर का तो स्वभाव ही यूं। This is the nature of the ocean. Every moment, innumerable waves are created and they clash against each other, they disappear, they give rise to innumerable bubbles, and those bubbles are created and they get destroyed every moment. Nobody keeps account of it. Similarly, countless universes, they get created every moment and they get destroyed every moment. And it is the nature of the nature. This is called nature. यही तो है दुनिया. Nobody knows why, where, what, when. फिर भी हम कहते हैं आकाश शून्य है, आकाश कुछ करता नहीं, आकाश कुछ कर ही नहीं सकता है। बताओ, कर ही नहीं सकता आकाश, जबकि सब कुछ आकाश ही करता है अपने अंदर। उसका उदाहरण देते हैं। मेरे बाएं हाथ में खुजली हुआ, दाहिना हाथ आकर के खुजली करता है, हजारों जीवाणु मर गए। इसके लिए जिम्मेवारी कौन है? Who is responsible for all this? है खुजली हुआ, मैं खुजली किया या नहीं किया? एक हाथ दूसरे हाथ को स्पर्श किया तो मैं खुजली किया या नहीं किया? क्या बोलोगे? और खुजली किया तो हजारों जीवाणु नष्ट मर गए, कोई दुख क्या है इसके लिए? है
सरकार को जिम्मेवार ठहराया। हाँ, सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। इतने जीव मर गए, कोई पूछा नहीं, मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसा सरकार क्या करना हमारा। The right hand scratches the left hand. It is I, the body. Whether I did it or who did it. And as a result, innumerable germs were destroyed. Nobody cared for them. And it was not taken care by the government. And nobody gave them, their family, the क्या कहते हैं उसका मुआवजा को, compensation money. Government swallowed all their money. क्या करें ऐसा गवर्नमेंट को। भाइयों और बहनों, चलो हम स्ट्राइक करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे। कितने प्राणी नष्ट हो गए। ये तो ये मेरे को 25 लगा। पेस्टिस में दवाई खाए था, लाखों जीवाणु नष्ट हो गए। कोई पूछा नहीं। इतना मर्डर किया तुम। कितने पैदा भी तो हो गए, जीवन भी मिल गया। नहीं, पैदा तो होते हैं, वो उसके लिए कोई मुआवजा। हाँ हाँ, देते हैं लेबर मनी। प्रसव का सरकार से मिलता है कुछ, वो नहीं मिला हमको। केस करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा। SIR SIR करेंगे, कितना कौन मरे और कितना जिंदा है, कौन वोटर लिस्ट में है। हे भगवान, ये बात तो मजाक का है, लेकिन देखो सीरियसली, एवरी लाइफ इज as important as your life to you. Even a life of a germ, amoeba, it gets born in a moment, and within a few minutes it gets destroyed and gives rise to so many other progenies, so many children, and they get young and old, and they live their life as we live our life.
Every life is so important for everyone. Just as you feel, you must complete your full age, and then at the age of 90, 100, then you may die. And in between, in the meanwhile, you feel your childhood, your youth, your old age, your whole life you enjoy fully. Similarly, a germ, it enjoys its life fully for 1 minute or half a minute. It has its childhood, it has its youth, old age, and its family. They don't do family planning. For a mosquito, its life is as important for it as yours. Every being in this universe, they are the nature's members, and they have all the rights. You have got human right and the mosquito right and the germs right. They have their right. Struggle to live. Everybody struggles to live his life. And if you are hindrance in others' lives, you are a sinner. How much sin you occur every moment by taking, inhaling and exhaling. How many deaths are because of you? How you are disturbing the nature. So all these points, all these descriptions are given by the subordinates to the king Vipasit. See how the sky is, how this sun is, how that moon is, and how is this ocean. इसी प्रकार आकाश ईश्वर से भी भिन्न है, ऐसा भेद उन्मत्तता को प्राप्त पागल, उन्मत्तता को प्राप्त वादी ने किया है। आकाश, ये जो आकाश ये परमात्मा से अलग है। मतलब कहने का वशिष्ठ जी का, यही आकाश जो हम जो देखते हैं, जिसको समझते हैं, नहीं समझते हुए भी समझते हैं, नहीं देखते हुए भी देखते हैं। आकाश के अंदर रहते हुए हम आकाश को ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते। हमारा महिमा ऐसा महिमा कि हम आकाश को भगवान से अलग देखते हैं, और वो भगवान आकाश के परे हैं और इसके यहाँ पर नहीं है। वो भगवान आकाश के अलग है, आकाश से अलग है, जिसको हम चिदाकाश कह करके विचार कर रहे थे। तो उसको हम इस आकाश से अलग मानते हैं, और ये आकाश हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, और आकाश को अच्छी तरह हम जानते हैं। हमारा नाता आकाश के साथ है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो वायु का प्रेशर, चाप, वायु चाप आकाश को मान लिया गया। ये हम जैसे मानते हैं आकाश सबको दबा कर रखता है, नहीं तो पेड़ वो जैसे पैदा हुआ वो फटाफट ऊपर उठता, लेकिन आकाश उसको दबा कर रखा है। उसी को हम कहते हैं वायु का चाप। वायु का चाप अगर नहीं होता जहाँ न्यूट्रल जोन में नहीं होता है, वहाँ तुम कहीं भी आकाश में भी पैदल घूम सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं उधर। ऐसे ही शून्य में टेबल रख करके वो गिरेगा नहीं और वहाँ पर तुम भोजन कर सकते हो। ताकत अगर लगा सकते हो, जहाँ फेंकोगे वहीं पर वो पत्थर वैसे ही रहेगा शून्य में, वो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार कोई वैज्ञानिक लोग कह रहे थे उधर कोई जा कर के कुछ वो कचरा पट्टी फेंक करके आए, जैसे हम जाते हैं तीर्थ स्थान में और खाना पीना करके और रास्ता के किनारे सब डस्टबिन में सब डाल देते हैं ना, ऐसे ही कुछ उधर बहुत कचरा पट्टी सब छोड़ करके आए हैं। एक बार आया था वो साइंस चैनल में, तो उसको सब सफाई करने के लिए कोई देश कोशिश किया था। हाँ जी साहेब गया। मतलब कहने का हम जो पार्श्वचर के द्वारा प्रकृति का वर्णन राजा के सामने किया गया, उससे हमको कितने विचार करने के लिए चीज मिलता है। विचार तो करना, जो सुने हो उसके ऊपर विचार करो और अपना स्थिति को विचार करके देखो हम क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और कैसे हैं हम इस दुनिया में। हमारा अपना स्थिति क्या है। हम इंसान हैं, सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के प्राणी हैं। सारे दुनिया को हम अपने बस में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जात हैं, इंसान हैं। कोई इंसान बनना तो कहीं रह गया। पहले तो तुम कौन है, पहले तो बताओ और पहचानो अपने को। अपने को पहचानो कि कौन सा खेती के मूली तुम हो, कौन सा खेती के मूली। तुम मूली हो या मूली के पत्ते हो या मूली के पत्ते में वो जो कीड़े होते हैं वो हो। धन्य है ये मनुष्य लोग। कहते हैं आकाश में सब भूत विलीन होते हैं, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही स्थिर रहते हैं। इसीलिए जन्माद्यस्य यतः, जो हमारे भागवत में स्तुति करते हैं ना, जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसमें हम बढ़ते हैं और आखिर हम लय को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा को हम नमस्कार। जन्माद्यस्य यतः, यह शास्त्र सिद्ध ईश्वर लक्षण आकाश में ही दिखाई देती है। परमात्मा में जो कुछ तुम सोचते हो
वो सारे इस आकाश में है। अनंत अनादि, सब करता हुआ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करता हुआ सब कुछ करना, सर्वत्र स्थिति सत्य चित्त सब जानता है, और आनंद सब जगह पर सदा सर्वदा निर्मल। और आकाश को रोया हुआ कोई देखा? देखा? बादल रोया? हाँ, वो काला बादल जब अंधेरा छा देता है वो रो रहा है, और जब बिजली चमकता है वो हंसता है। आकाश हंसता है। यही तो बात है। अभी आकाश देख रहा है, रात को आंख बंद कर देगा, सो जाएगा। हाँ, यही बात जब परम विचार करते हैं, परमात्मा इसे आकाश को बोलेंगे अगर, तो अत्युक्ति नहीं होगी। और ये परमात्मा आकाश के रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ है। हम उनको ढूंढते हैं पेड़ के अंदर, पत्थर के अंदर, पानी के अंदर, सूरज में, चंदा में ढूंढते हैं हम भगवान कहाँ है। इसी को देख करके वो कबीरदास बोले, पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुने सुने आए हंसी रे। पानी के अंदर मछली कह रहा है मैं प्यासा हूँ। भगवान के अंदर हम भगवान में हैं, भगवान के अंदर है, भगवान के बाहर भी है। भगवान हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पर भगवान है। आ गया। तो इसी प्रकार हम भगवान को ढूंढते हैं। भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान अदृश्य है। एक बार मैं कभी बहुत पहले कभी अपना जन्म स्थान में गया था। मैं गया, पहुंचा करके सारा बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। अरे बाबा जी आ रहा है, मिलने के लिए बहुत लोग आ रहा, दिन रात मेला जैसे, बहुत गांव से दूर दूर से सब लोग आते हैं मिलने के। खबर फैल गया। मेरा पहले हाई स्कूल में पढ़ाते थे, कभी ज्योग्राफी मैथमेटिक्स हाई स्कूल में पढ़ाते थे। उनको गुरुजी को, वो रिटायर्ड हो करके किसी प्राइवेट स्कूल में, हाई स्कूल में हेड टीचर थे। तो उनका खबर मिला, वो मुझे बुलाए, अरे बाबा जी तुम्हारे दर्शन करेंगे, आ जाओ थोड़ा। मैं गया। वो थे जैन धर्म के। जैन धर्म ये भगवान वगैरह नहीं मानते हैं। तो वो मुझे अपना जो कैबिन में बुला लिए और ले करके पूछते हैं, बाबा जी मैं एक बात पूछूंगा, सच बोलोगे? मैं कहा गुरु जी आप हमारे जन्म से आप हमारे मार्गदर्शक रहे, सब कुछ आप ही से सीखे, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आपको मैं कैसा कुछ चीज़ छिपा सकता हूँ? आप जो पूछेंगे मेरे को मालूम है तो बताऊंगा। अच्छा बाबा जी सच बोल। सच बोल, भगवान को देखा है तेरी के। अब मैं उनको क्या समझाऊं? हाँ भी नहीं कर सकता, नहीं भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश किया, गुरुजी भगवान को दिखाने जाता है ऐसा आँख से,
भगवान भगवान गायब हो जाते हैं। भगवान को इसे आँख से नहीं देखा जाता है। हमारे धारणा सब, हम कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं। मैं बहुत समझाया, नहीं माने, नहीं माने, समझने के लिए तैयार नहीं। बूढ़े हो गए हैं जैन धर्म में, वो कभी मानते नहीं भगवान उगान। तो बार बार, तो अगर आंख से देखा तो बता, मैं कैसे कहूँ? गुरु जी, आंख से नहीं दिखा जाता है भगवान, बुद्धि से देखा जाता है। भगवान को मैं देखा हूँ, हर पल में देखता हूँ। और भगवान को कान से सुना नहीं जाता है और आंख से नहीं देखा जाता है, परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं। क्या करे? तो ऐसे ही समझो, बौद्ध लोगों को भी अगर भगवान के बारे में बोलोगे ना तो नहीं मानते हैं, वो शून्यवादी है ना। हाँ। लेकिन बुद्ध देव क्या बोले, महावीर क्या बोले, उसको ये समझते नहीं। कुछ ना कुछ समझ करके कुछ कर देते हैं। मोहम्मद क्या बोले, ये मुसलमान लोग समझते हैं क्या? अपने मनमानी चलाते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। मैं जो जानता हूँ वही भगवान बोले। मैं कहा ना, एक लड़का था, वो 150-200 रुपया दे करके संस्कृत पढ़ रहा था, तो वो 200 रुपया दे करके शास्त्री का एक सर्टिफिकेट ले लिया। और मेरे को आकर के एक दिन, इधर ही रहता था, फिर गया था मैं, सब उसको बनारस भेजा था। 2 महीना में शास्त्री कर लिया वो। अगर ये कहता, स्वामी जी आपको मैं कथा सुनाऊंगा, मेरे कथा सुनो। मैं कहा, अच्छा कथा करता है तू? ना। हाँ। बैठा हारमोनियम लेकर, हारमोनियम स्वर कहाँ जाता है पता नहीं, और कुछ गाता है, उसका कोई अर्थ नहीं। और फिर कहता है, वो जो हनुमान जी को वो जो सुरसा निगलने के लिए गया था, निगल नहीं पाया, तो सुरसा कहता है भगवान कृष्ण अनादि अनंत है करके गीता में कहे। हाँ, इसमें क्या समझते हो, क्या है इसमें? ऐसे ही कुछ को कुछ, हारमोनियम स्वर कहाँ जा रहा है, और वो क्या कहीं राम को कृष्ण में जोड़ के वो गधा को उसमें गीता में जोड़ करके, रामायण को महाभारत में जोड़ के, कुछ को महाभारत में राम जी ऐसा बोले। लेक्चर 1 घंटा मेरे को जबरदस्ती बैठा, स्वामी जी बैठना पड़ेगा। मैं ऐसा सब कथा करता हूँ, सब लोग सुनते हैं, धन्य हो। तो हम उस पागल से छोटा नहीं, हाँ उसके बराबर ही करते हैं। तरीके पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त मत जगत, सब जानते। मेरे बराबर कोई पंडित है दुनिया में? कोई बताओ तो। है?
तो वो कह रहे हैं कि धन्य है ये मनुष्य अणु को जो कहते हैं ईश्वर ईश्वर दिखाई नहीं देता है, और ये आकाश ईश्वर से भिन्न है। ऐसे भेद उन्मत्तता का वादी जो हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, हैं? पानी में अगर मछली कहता मुझे पानी प्यास मिटता नहीं, तो और क्या कहा जाता है। हमारे कबीरदास जी बोले, जो रंग से भरा हुआ उसको कहते हैं नारंगी। नारंगी रंगहीन है। नारंगी ना नाम रखे नारंगी। जो इतना जल्दी चलता है उसको कहते गड्डी, गड़ा हुआ। ये दुनिया को देखो तो कैसे पागल है ये दुनिया। और ऐसा मछली कहता है मेरे को प्यास नहीं मिटता है पानी के अंदर, बताऊं। तो इसी प्रकार वो व्हील वगैरह ना ऊपर आते हैं, उछलते हैं, इसलिए तो सांस लेने के लिए। बड़ा विचित्र दुनिया भाई, और उसी विचित्र जीवों के अंदर हमारी गिनती है। हाँ, तुम अलग से पंडित मत बनना। The fish says, I am very thirsty inside the water. Why does the fish say that, so? Huh? Why does the fish say? Foolishness, though the God is within you, outside you, everywhere, God is God. God is all pervading. How can you say, I don't see God? Is it not foolishness like a fish which says, I am thirsty, I cannot appease my thirst inside the water? That means utter foolishness. Blind, ignorant, can say like this. So similarly, who says, I don't see God, that's how one who doesn't know what is God, and one who claims, I don't see God, there is no God, there is no greater fool than him. Whatever you see, whatever you feel, whatever you are in, everything in and out, everything is God only. You fool, you don't understand all this. Just as we say the sky is empty, though we see everything is inside the sky, yet we say the sky is empty and sky is far off. Being surrounded by sky in and out, we say sky is outside us. Sky is empty. Similarly, people say, I have not seen God, I don't believe in God. God is not there, nobody has seen him. Such blind people, blind by their
mind, they don't understand anything, fools. यदि अग्नि से चिंगारियों की तरह आकाश से ही जगत के जन्म, स्थिति और लय मानते हो तो आकाश जड़ नहीं है, किंतु चिद व्योम रूपी मैं ही हूँ। मुझ में ही सब उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही स्थित है और सब मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। यह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ। इस आशय की भगवती श्रुति से तो ईश्वर हूँ। यों तटस्थ ईश्वर पक्ष खंडनार है। ऐसा कोई तत्वज्ञानी वहाँ पर कहता है कि देखो कैसे हम भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। कोई तत्वज्ञानी कहता है जिसमें सृष्टियों अग्नि से उत्पन्न हुई चिंगारियों की तरह चिंगारी के तनाव उत्पन्न होते हैं, नष्ट होती है, लीन होती है और आविर्भूत होता है, आदि मध्य और अंत शून्य एक निर्मल आकाश मैं ही हूँ। ईश्वर नाम का न्यायिकों का अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं है। कोई न्यायिक वो ईश्वर के बारे में कुछ बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? वो वाणी के परे हैं, तो उनके ऊपर ये कह रहे हैं। वो किसके मुँह से कह रहे हैं वशिष्ठ जी? पार्श्वचर के मुँह से राजा को समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी तो बोल रहे हैं, कहते हैं देखो मैं अगर आकाश को देखा जाए, सही ढंग से देखा जाए, तो वो भगवान को अलग रखो। इसे आकाश में जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलते रहते हैं, चारों तरफ बिखरते रहते हैं। जैसे जलप्रपात के जगह पर देखो जल के कण कैसे चारों तरफ बिखरते रहते हैं। फुहारा कैसे बिखरता रहता है जल का कण, ऐसे ही इसे आकाश के अंदर कितना अनंत ब्रह्मांड बनता बिगड़ता रहता है। और अगर तुम किसी ब्रह्मांड, किसी धरती, किसी सृष्टि के अंदर तुम हो, तो तुम क्या यह आकाश से अलग हो? है क्या वो चिंगारी अग्नि से अलग है? क्या वो जल का बारीक कण फुहारा क्या जल से अलग है वो? तो इसको अगर तुम सही ढंग से देखते हो, जैसे चिंगारियाँ
अग्नि से अलग नहीं है। ऐसे ही ये सारे जितना अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब इस आकाश के अंदर बनता बिगड़ता रहता है। इस आकाश के स्वरूप मैं ही हूँ, इससे मेरे से अलग नहीं। मैं ही अंदर बाहर से आकाश ही तो हूँ। है हम जो आज तक सुनते आए, हृदय रूपी आकाश, गुफा, गुफा मतलब उसके अंदर शून्य है, शून्य मतलब आकाश। इसी ढंग से हृदय गुफा कहा गया। तो अंदर भी आकाश है। हर नस के अंदर जो खून दौड़ता रहता है उसमें भी आकाश है। आकाश में ही गति हो सकता है, नहीं तो ठोस चीज में कभी, मतलब जो जिसको हम ठोस करके सोचते हैं, ठोस ही शून्य का दूसरा नाम है। शून्य मतलब जिसमें दूसरा ना हो, ठोस भी दूसरी चीज ना हो, उसको ठोस कहते हैं। तो हमारे जो कण कण में आकाश भरा हुआ है, और वैज्ञानिक लोगों का कहना हमारे जो व्यक्तित्व है, शरीर है, इसमें 90% से ज़्यादा आकाश है। जिसको हम हड्डी, मांस और चमड़ा इत्यादि करके मानते हैं, वो मुश्किल से सब 5 to 10% है, और बाकी सब आकाश ही आकाश। और बाकी में जल, अग्नि, वो भी है सब। इसीलिए तुम्हारा जो सॉलिड चीज जिसको बोलते हो मेरा शरीर है, वो तो 1-2% है। और हम शरीर मान करके हम सोचते हैं हम शरीर हैं। रियली स्पीकिंग, our body, which we think I am this body, it is nothing but full of sky only, inside, outside, only sky is there. 90% sky and other elements are very less, and your earth element, it will not be even 1%, which we think it is flesh and bone and solid. So this balloon, we think it is my body and I am so and so. I am so and so. You see, the whole body is full of prana, air, sky, and fire, heat. And what do you call this body, and who are you, where are you, when are you, what are you, where are you? इसको जब विचार करते हैं तो वो कह रहे हैं, अरे बेवकूफो, है तुम भगवान को नहीं देखते हो। नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, पर आकाश को तो जानते हो। आकाश को अगर विचार करोगे, मैं वो आकाश हूँ, मेरे में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और मैं ही वो भगवान हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं जल हूँ, मैं स्थल हूँ, मैं सब कुछ मैं ही तो हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। ये खाली हमारे शास्त्र नहीं कर रहा है, वशिष्ठ जी नहीं कह रहे हैं। Even the modern science says whatever is there in the cosmos as a
cosmic being, the whole total form, whatever it contains, everything is present in a small form in an atom. They have proved it and they have shown it. Whatever is there, you find in an atom, when it elaborates, when it gets expanded, then it becomes the cosmos, and whatever is there in the atom is there in the cosmos. Atom is a model, the molecule is a model. Nothing difference is there. No difference is seen by even by the modern scientists. If you follow them and if you support them, even then you are the center of the whole universe. You are everything. All the innumerable worlds are within you. You are everything. Why do you feel shy? Why do you feel unable and feel so you see understood to say, I am everything. I am the God. I am the dog. I am the universe. Everything is in me. I am in everything. Both way you can see, you can say, you can feel. Both way, by all the ways. If you can analyze little deeply, sincerely and seriously, you see whatever is there, whatever you can think or beyond your thoughts also, it is within you. You are everything. And you are so-called God. You are so-called all this universe. There is nothing else other than you. You are the all-pervading existence. Why don't you feel proud to say so? Why are you ashamed and afraid to say so? जो हमारे कहते हैं शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, यही तो सारे शास्त्रों का सार है, सारे वेदों का सार कह दिए। परंतु ये तो वेद ने सार बताया पर हम नहीं माने, क्योंकि हमारे समझ के बाहर, क्योंकि हम गधों का गधे, हाँ, सोचना नहीं चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, समझते हुए भी ना समझ हैं, देखते हुए भी अंधे हैं। हाँ, और कैसे तुमको भगवान का दर्शन होगा बताओ? कैसा भगवान को तुम देखना चाहते? कहाँ शास्त्रों में हमारे जो दृष्टा है सबने कहा सहस्र शीर्ष पुरुषा, तुम्हारा मेरा उसका उसका सबका सिर उसी का है और तुम्हारा ही है।
सहस्राक्षी सहस्रपात, हजारों आंख, हजारों हाथ पैर, विश्वरूप तुम ही हो। वो कालू हमारे विश्वरूप अर्जुन को दिखा दिया, कोई बड़ी बात नहीं किया। और समझदार था ग्वाल वाल का छोरा है, वो हिम्मत वाला था, क्योंकि मूर्ख गब्दल गांडू वो किसी को परवाह ही नहीं करता है ग्वाल वाल किसी को परवाह ही नहीं करते हैं, जो सोचेगा वही बोल देंगे। और वो बोल दिया, दिखा दिया मैं विश्वरूप हूँ। और अर्जुन इतना बड़ा योद्धा टट्टी कर रहा था देख करके मेरे को देना पड़ा उसको दवाई, अर्जुन को बेचारा 25 लग गया था उसको भाइयों और बहनों, दवाई चाहे तो मैं दूंगा, डरो मत, हो जाए टट्टी उल्टी, हमारा अस्पताल है और मैं खुद दूंगा दवाई, फिकर मत करो। बोलो मैं हिम्मत करो बोलने के लिए, बोलो मैं भगवान हूँ। भगवान नहीं, भगवान का बाप हूँ ये इससे अलग कुछ नहीं हूँ, सच बोलूंगा, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। गीता के ऊपर हाथ डालूंगा, सीता के ऊपर अरे सीता के ऊपर हाथ डालूंगा, जेल में जाऊंगा और फिर भी कहूंगा मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरे बिना दुनिया में कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा स्वामी जी, अगर तुम इतना जोर जोर से ऐसा चिल्लाते हो तो जो कहता है मैं बड़ा भारी पंडित हूँ, मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, मैं समझदार हूँ, उसके ऊपर तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, उसका मना क्यों करते हो? वो तो कहता है ठीक है, हाँ मेरे बराबर विद्वान कोई नहीं, मैं डबल एम किया हूँ तो उसके विरुद्ध में आप क्यों कहते हो? तुम ही तो सिखाते, बोलो मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान का बाप हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ हूँ। भैया, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, समझो कितने बार बोल बोल के थक गया। बोलना जो बोलते हो वो सोचो, और जो बोलते हो उसको करके दिखाओ तभी तो। और खाली बोलते हो, सोचते नहीं, और बोलते करते नहीं, तभी तो है आपत्ति, तभी तो तुमको मूर्ख कहते हैं। ऐसा मत बोलो, गीता में कहा आढ्योस्मि धनवान सुखी कन्यास्ति सदृशो मया, मेरे बराबर कोई नहीं, ये मूर्ख लोग बोलते हैं। क्यों मूर्ख कहा गया उसको? क्योंकि मैं तुमको मूर्खों का और पंडितों का आईडी कार्ड दिखाता हूँ और डेफिनेशन समझाता हूँ। भूलना नहीं, जो सोचते हो उसको बोलना, जो बोलते हो उसको करके दिखाना। इसी को कहते हैं पंडित और महात्मा। और जो सोचते हो उसको बोलना नहीं, जो बोलते हो उसको करना नहीं। इसीलिए तुमको
दुरात्मा कहा गया। महात्मा नहीं, तुम दुरात्मा, इसीलिए तो तुमको कहा गया मूर्ख हो। बोलो बोलो मैं भगवान हूँ, पर सोचो और करके दिखाओ। बोलते हो खाली सुनी सुनाए, तो वो तो टेप रिकॉर्ड भी बोलेगा। हाँ, आजकल वो फोन भी बोल देता है, क्या क्या बोल देता है। तो उससे तुम क्या ज्यादा हो गए हो। बोलना तो हम ब्रह्मा से बोलना तो सोचना चाहिए, मैं ही सर्वव्यापक आत्मस्वरूप हूँ। जब सर्वव्यापक हो तो तुम कुछ बोल सकते हो, कुछ कह सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? आकाश कुछ करता है क्या? है, यही तो अभी चर्चा कर रहे थे। महान लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं। बड़े लोग अभी अभी तो विचार किए थे, तुम अगर सर्वव्यापक परमात्मा करके अनुभव करते हो तो तुम पत्थर के माफी स्थावर बन जाओगे। हाँ, तुम सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान जब हो तो उसमें कोई क्रिया, अर्थ क्रियाकारिता नहीं दिखता है। हाँ, तीन काल में जगत नहीं, दाल में नमक नहीं। ठीक है, इसीलिए तुमको गाली दिया जाता है, मूर्ख कहा गया, बालक कहा गया, पिशाच कहा गया, पशु कहा गया। पूंछ के बिना पशु हो, हाँ, सींग के बिना तुम जानवर हो, और इससे क्या बोला जा सकता है। फिर भी अगर होश में नहीं आते हो। इतना कहा गया धोबी के दोस्त। हाँ, और क्या कहा जाएगा। होश में आओ, जो सोचोगे वही बोलोगे, जो बोलोगे वही करोगे, तब तो तुम महात्मा है। तुम्हारे पैर में पड़ेंगे, तुम्हारा तुम्हारा चरण धूल लगाएंगे मत्थे में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो तुमको गद्दे की बच्चा कह के पुकारेंगे। तेरी के, जरा होश में आओ। दो से एक चीज करो। हाँ, एक चीज करो, यही बात वो बता रहे थे। बताते हैं, बिल्कुल सही बताते हैं। जिसमें सीटियां और अग्नि से उत्पन्न हुई चिंगारियों की तरह उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, लीन होते हैं और आविर्भूत होते हैं। आदि, मध्य और अंत शून्य एक निर्मल आकाश मैं ही हूँ। मेरे में कोई कलंक नहीं हो सकता है। ईश्वर नाम का न्यायिकों का अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं है। इसीलिए वो तटस्थ हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। और दुनिया है तो वो ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति बनाता है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, शंकर कहते हैं। वो परम ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म के बारे में अगर बात करते हैं वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तटस्थ रहते हैं। हाँ नहीं, नहीं नहीं, इसीलिए कि उस समय तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाइयों और बहनों, सच बोलना सीखो। सत्यम रीतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि।
समझे। जिसमें यह जगत भ्रांति का उदय और अस्त होता है, जो निस्सीम आकाश अपने शरीर में अशेष वस्तुओं को धारण करता है तथा त्रैलोक्य स्वरूप मणियों का विस्तृत आधार है, वह आकाश ही चिन्मय परम ब्रह्म ही है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूँ वह आकाश ही परमात्मा है, जो मेरे अंदर बाहर और ऊपर नीचे चारों तरफ व्याप्त है। यह आकाशी परमात्मा और वही मैं हूँ, मेरे से और दुनिया अलग नहीं। इस प्रकार मेरा समझ है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय।